Hello. We will see the diagnosis. This is Gilbert syndrome. It is called as unconjugated hyperbilirubinemia. It is in many a times it is inherited. विष गर्विष मत्स्य वत्सन अपक्व भस Hello. Good evening to one and all. Today's our topic is clinical approach to liver disease. उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा. हमारे यहाँ नॉर्थ और साउथ ये दोनों जगह से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलना पड़ेगा, तो वैसा हम करेंगे. एंड सेकंड थिंग, आज से हमारा क्लिनिकल स्पेक्ट्रम चालू होगा. उसके पहले हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये 2 लेक्चर में देखा. वो बेसिक जब तक वो अच्छे से आप बार बार वो देखिए, रिकॉर्डिंग्स जो भेजे हैं वो, तो आपको ये क्लिनिकल ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. आज से कुछ केसेस रहेंगे, कैसे हर एक डिसीज के बारे में देखना है वो हम देखेंगे. लेट अस स्टार्ट. This is case for first case. A 17-year-old male on screening for Gulf employment was detected to have mild jaundice. His past history is recurrent yellowish discoloration of sclera, but normal urine and stool color. One of his sisters also has the same problem. His serum bilirubin is just having a yellowish discoloration of sclera, and his serum bilirubin is 3.8. That's it. And major one of the important thing is one of his sister also has the same problem. Any guess, or we'll see the diagnosis. This is Gilbert syndrome. It is called as unconjugated hyperbilirubinemia. It is in many times it is inherited. बहुत बार सिबलिंग्स में हो जाता है, या मदर टू सन, फादर डॉटर, ऐसे भी बहुत बार दिखाई देता है. उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता जाता है. उसको बाकी कुछ भी नहीं होता. स्ट्रेस रहेगा, या कुछ भूख लगा, या कोई धूप में गया, रात मतलब रात भर उसने काम किया, तो ऐसे वक्त उसको येलोइश डिस्कलरेशन स्क्लेरा पे होने लगता है. बाकी उसमें कुछ भी नहीं रहता. इट इज उसको क्या ट्रीटमेंट देना है हम आगे देखेंगे. दिस इज सेकंड केस. A 57-year-old male with diabetes who is found to have elevated cholesterol.
As a part of his annual follow-up, he was diagnosed with hypertension earlier this year, and this is now controlled with an ACE inhibitor. The diabetes was diagnosed 3 years ago and has been well controlled by medication. But now the general practitioner discusses the benefits of starting a statin for elevated cholesterol and other things, and measures some baseline liver function test. So in liver function test, this was found SGOT 163, SGPT 130, and total cholesterol to HDL ratio is 7. So we will see the diagnosis. आपने शायद गेस भी किया होगा. दिस इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज. हमारा एक सिर्फ इस पे एक लेक्चर है, हम आगे देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम इसमें कर सकते हैं. नाउ दिस इज थर्ड केस. A 16-year-old boy is brought to his general practitioner by his mother, who is concerned about deterioration in his school performance. A year ago, he was one of the best students in the school, but since then he has had a problem concentrating and his examination marks have deteriorated. Abruptly, his school performance has come down. His mother initially thought his change of behavior was a feature of adolescence, but she became more worried when his 10-year-old brother began to beat him at tennis and he had to leave his local football club. On examination, this important thing, he is restless, he has a tremor and his movements appear generally uncoordinated. His speech is slurred. Abruptly उसका स्कूल परफॉर्मेंस कम हुआ है, उसको ट्रेमर्स आने लगे हैं, मतलब अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से स्पीच स्लर्ड है, एंड स्लाइटली लॉस ऑफ एपेटाइट है. ऐसा उसका ये है. पाल्पेबल लिवर है, स्प्लीन है. ऑन एग्जामिनेशन, फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, उसका बाद में उसका लिवर फंक्शन टेस्ट किया गया तो उसमें HGOT 102, HGPT 87 इतना ये आया और आई में ये चेंजेस आ गए. आपको कॉर्निया दिखाई देगा तो वहां पे वैसे चेंजेस आए हैं. दिस इज विल्सन्स डिसीज. यूजुअली 16 ईयर तक ये होता है. बहुत बार दिखता है, बहुत कॉमन है ऐसा भी नहीं है, लेकिन दिखता ही नहीं है, अनकॉमन है ऐसा भी नहीं है. इसके केसेस दिखते हैं और अच्छे से ट्रीट होते हैं. इस पे भी हमारा एक लेक्चर है, उसका ट्रीटमेंट डिटेल प्रोटोकॉल हम देखेंगे. तो ये आज हमने 3 केसेस देखे, अलग अलग सेम HGPT लिवर फंक्शन टेस्ट के कुछ पैटर्न्स रहे, उसमें कुछ एडिशन भी करने पड़ते हैं, तो हम देखेंगे. एक जनरलाइज पिक्चर रहता है कोई भी लिवर डिसीज का. जब प्रोग्रेस ये कब होता है, जब बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन ये आपका मोर देन 2.5 और 3 मिलीग्राम तक से आगे गया हो तो ये चेंजेस दिखाई देते हैं. ये देयर आर n नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस पैटर्न. इट इज कॉल्ड एज, in local term it is called as jaundice, but उसका डिटेल क्यों हो रहा है, सिर्फ जॉन्डिस हुआ इसके लिए हमारा कुछ एक फिक्स ड्रग दे दे, आरोग्यवर्धिनी दे दे या कोई फलत्रिकादि का क्वाद दे दे, या ऐसा कुछ करने से अच्छा हम एक क्लिनिशियन की तरह ये उसको अच्छे से डायग्नोस करें, उसको अच्छे से इवेल्युएट करने, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. Knowing medicines is not enough for a clinician. वो कोई भी दे सकता है, केमिस्ट भी दे सकता है, लेकिन हम जब एक क्लिनिशियन करके होते हैं तो उसको डायग्नोस करना चाहिए, उसको इवेल्युएट करना चाहिए, आगे जाके उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए. जब हम आयुर्वेद में ग्रंथों में मैंने पहले लेक्चर में ही बोला कि यकृत शब्द कहाँ कहाँ आया है, ये हमने देखने की कोशिश की. तब बहुत नॉट मोर देन 15 to 17, 20 उसके आगे यकृत शब्द मिला नहीं, यकृत वर्ड ही नहीं मिला. तो उस पे हम आयुर्वेद की चिकित्सा एक स्पेशलिटी डेवलप, मतलब हिपेटोलॉजी
ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी डेवलप कर सकते हैं कि विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिधर 15 या 20 जगह ही सिर्फ यकृत शब्द आए हैं वो नहीं हो सकता। जिधर एलोपैथी में 3 साल और डीएम के लिए हिपेटोलॉजी कोर्स किया जाता है, उधर हम सिर्फ 10 एक वर्ड लेके वो नहीं हो सकता। तो हम डिटेल जब देखने लगे बृहत्रयी लघुत्रयी, तब पांडु, कामला, हलीमक, कुंभकामला, पानकी, लाघरक, उदर, रक्तपित्त, मदात्य, यकृत रोग, प्लीहारो, ये भाव वैशज्य रत्नावली में बाद में आए हैं, कुछ पार्ट उसका भाव प्रकाश में भी है। ऐसे हमको देखने मिलता है। इसका और भी कुछ व्याधि है जिसका हम आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे डिसीजेस की तरफ, तब हम बताते जाएंगे कि कैसा उसका अच्छे से अध्ययन करके हम आयुर्वेद के अनुसार लिवर डिसीजेस अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं विद इन अवर लिमिट्स। कुछ ऐसे मतलब वो लिमिट क्या है वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि लिवर ये एक वाइटल ऑर्गन होता है। ऐसे ही उसको कोई भी आया तो एक हमारा फिक्स ड्रग देके या पेटेंट ड्रग देके वो काम नहीं हो सकता। जैसे लिव 52 है या और कोई आरोग्यवर्धिनी है, या ऐसा काम नहीं हो सकता। तो डिटेल इवेल्युएशन जरूरी होता है। व्याधि अवस्था इंपॉर्टेंट है या व्याधि इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल मन में उत्पन्न होता है। हम सिर्फ कामला एक व्याधि, पांडु कामला या ऐसा सिर्फ व्याधि देखे या एक्चुअल व्याधि अवस्था देखे, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है, ओपीडी में आता है, तब वो एक कामला का एक बहुपित्त कामला या अल्पपित्त रुद्धपित्त कामला या ऐसा निदान लेके नहीं आता। वो कौन से भी पर एक उसका सिर्फ लिवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट लेके आएगा। शायद वो कैंसर का हो सकता है, शायद वो और कोई गॉल ब्लैडर के डिसीज का हो सकता है, या जैसे मैंने बोला सिर्फ फैटी लिवर का एक हो सकता है, या कौन से भी, तो वो कौन से भी स्टेज में आ सकता है, नॉट सिरोटिक चेंजेस में आ सकता है। तो सिर्फ हम व्याधि देख के वो नहीं हो सकता, तो व्याधि अवस्था देखना चाहिए और व्याधि अवस्था के अनुसार उसकी चिकित्सा क्रम का प्रयोजन करना चाहिए। रोग, ये बहुत अच्छा सूत्र है चरक सूत्रस्थान 2020 में। रोगमादो परीक्षेत, ध्यान में रखने के लिए भी अच्छा है, 2020 रेफरेंस से। तो रोगमादो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, जैसा अभी मैंने बोला, पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही औषध आता है। आतुरस्य, तो ये क्या, हम रोग आतुर की परीक्षा करते हैं तो क्यों करनी चाहिए? तो उसमें चरक विमास्थान में कहा है, आतुरस्य परीक्षा आयुष प्रमाण ज्ञान हेतु, आयुष का प्रमाण के ज्ञान हेतु और बल व दोष प्रमाण ज्ञान हेतु। आयुष का प्रमाण उसके आयुष्य का कितना है, ये मतलब ये प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, इससे हमको वो देखना ही चाहिए। उससे भी ज्यादा मैं ये ट्रीट कर सकता हूँ या नहीं, ये मेरे से नहीं होता है, तो हम आगे उसको रुग्ण के हित में उसको अच्छी जगह उसको भेजना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरा है बल व दोष प्रमाण के ज्ञान हेतु, वो हमें चिकित्सा में फलदायी ठहरता है। तो हम जब एक चरक विमास्थान में ही है ये रोग की जब पहले अब हमने देखा आतुर की परीक्षा, अभी हम रोग का जब रोग के का अध्ययन करते हैं या उसको इवेल्युएट करते हैं, तो अब हमने क्या क्या देखना चाहिए, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। प्रकोप, उत्थान, कोई भी रोग के, अब आज हम लिवर डिसीज के बारे में देखेंगे, तो ये पॉइंट के अपने केस पेपर में या हम जब व्याधि का निदान करते हैं और चिकित्सा देते हैं तो ये सब देखते हैं क्या, ये देखना चाहिए। प्रकोप, उत्थान, अधिष्ठान, संस्थान, वृद्धि, क्षय, नामाभिधान, प्रवृत्ति, योनि, प्रत्यात्म लक्षण, वेदना, उपद्रव, स्थान, उदर्क, योग, निवृत्ति। तो अभी प्रकोप किस कारण के वजह से मतलब वो प्रकोप हुआ है। उत्थान मतलब उसका
उत्थान मतलब उसका क्रियारंभ कैसा हो रहा है, उसका पैथोजेनेसिस कैसा हो रहा है, संप्राप्ति कैसे हो रही है उसको। योनि मतलब उसके अभिव्यक्ति का कारण क्या है, उसके हेतु क्या है, ये देखने चाहिए। प्रत्यात्म लक्षण मतलब वो व्याधि का वो आत्मा होता है, वो क्या प्रत्यात्म लक्षण है वो देखना चाहिए। अधिष्ठान मतलब उसका स्थान, आश्रय या उसके दुष्य, ये देखने चाहिए। सिर्फ उसके दुष्य कौन से दुष्य मतलब आगे मैं बोलूंगा अभी, तो कैसा होता है वो। वेदना मतलब उसका पेन कहाँ होता है, किस चीज से कम होता है, किस चीज से बढ़ता है, वो देखना चाहिए। पेन स्केल देखना चाहिए। संस्थान मतलब उसका लक्षण या रूप, वो देखना चाहिए। उपद्रव कौन से मतलब वो व्याधि के कौन से उपद्रव स्वरूप हम, क्योंकि जब हम व्याधि अवस्था या रुग्ण हमारे पास आता है तो वो उपद्रव स्वरूप में भी आ सकता है। ये बहुत बार होता है, रादर लिवर डिसीज में उपद्रव स्वरूप में ही हमारे पास 80 to 85% टाइम आता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज रहता है, फॉर एग्जांपल फैटी लिवर रहेगा, तब वो बहुत निग्लेक्ट किया जाता है। ग्रेड 1 रहेगा, निग्लेक्ट किया जाता है, नॉर्मल समझता है, लेकिन एक 3 4 5 साल बाद वही रुग्ण हमारे पास उपद्रव स्वरूप में भी आता है। वृद्धि कौन से कारण की वजह से वृद्धि हो रही है, क्षय कौन से ऐसे कारण हो रहे हैं जिससे उसके लक्षणों में क्षय हो रहा है। स्थान विशिष्ट स्थान उदर का उपद्रव का उत्तरकालीन फल मतलब कौन से ऐसे जो उसमें कायम स्वरूप रहते हैं। नामाभिधान एक हमारे पास एक सूत्र है कि हमने दोष देखना चाहिए। विकार नाम कुशलो न जिर्यत कदाचन नहीं नाम विकाराणाम नाम तो ध्रुवा स्थिति, ऐसा एक सूत्र है। मतलब विकार का नाम, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा हमने दोष दुष्य या जो दशविध परीक्षा भाव है ये देखना चाहिए, ऐसा उसका ये है। तो यहाँ पे मेरी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रहेगी कि उसको जो व्याधि रहेगा उसको नामाभिधान करना चाहिए। जिससे सपोज मेरे पास ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं एक उसका रीजन बताता हूँ। सपोज मेरे पास रुग्ण आया, मैंने उसको चिकित्सा दी, मैंने मेरे पेपर पे जो मेरे फाइंडिंग्स है वो सब लिखे, चिकित्सा लिखी, सब लिखा, लेकिन कुछ कारणवश वो दूसरे स्थान में गया, दूसरे जगह पे गया, उसने उधर के कोई वैद्य को, डॉक्टर को दिखाया उधर, तो उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने सिर्फ दृश्य लिखा, ये लिखा सिर्फ, लेकिन उसके लिए उसको वो पेपर से उसको समझ में नहीं आएगा। एक तो कुछ अलग चिकित्सा हो सकती है या कुछ अलग ये हो सकता है, लेकिन नामाभिधान रहेगा ना, उसको एटलीस्ट क्लियर कट आइडिया तो रहती है। जैसे एलोपैथी में रहता है, नामाभिधान रहता है। तो मेरी ज्यादा जब हम निदान करते हैं तब हम आयुर्वेद के अनुसार भी नामाभिधान करना चाहिए, एलोपैथी के अनुसार जैसा जमे वैसा एटलीस्ट नामाभिधान करना चाहिए। योग कौन से योग, उसमें औषधि योग का प्रयोग करना है तो उसका भी उसमें विचार होना चाहिए। प्रवृत्ति मतलब उसका किस कारण से उसका आरंभ हो रहा है, वो उसको प्रवृत्ति है मतलब। और निवृत्ति मतलब किस कारण की वजह से उसका उपशम हो रहा है, वो देखना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है प्रकोप से लेकर निवृत्ति तक, ये व्याधि का व्याधि अवस्था देखने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। स्थान विशेष सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरगतश्चैव जनयन्ति आमयन बहु। चरक सूत्र स्तंभ का एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। उसका उस पे चक्रपाणि ने एक टीका लिखी है, तो उसमें कहा है कि स्थानांतरगत चकार एक स्थानगतो अपि बहुविकारम करोति इति समुच्चिनोति। मतलब यकृत ये एक स्थान समझा, ये एक स्थान समझा, तो उसमें यकृत में होने वाले बहुविकार जो उत्पन्न होते हैं, उसका मतलब यकृत के स्थान में बहुविकार उत्पन्न हो सकते हैं। इतना उसका क्लियर मीनिंग है। अभी दोष भेद और लक्षण, इसका जब हम पूरा देखते हैं
कि तब हम उसका सामनिराम से गतत्व, सन्निपात, आवृतत्व, ये चार जो पॉइंट्स है, इसमें हमारा पूरा दोष भेद लक्षण ये समाप्त होता है। ये बहुत ही विस्तृत है। मैं आपसे विनंती करूंगा कि आप उसका जो आयुर्वेद पत्रिका के कुछ विशेषांक है और मधुजीवन की भी कुछ विशेषांक है, उसका डिटेल अध्ययन करने के लिए उनका जरूर अभ्यास करें। दोष भेद से ये सब आपको ये बृहत्रयी में, लघुत्रयी में सब दिया है। तो हम जैसे जैसे व्याधि देखेंगे तब उसमें सन्निपात, गतत्व, आवृतत्व, सामनिराम कैसे होता है यकृत विकार में, वो हम देखेंगे। दोषपाक और धातुपाक, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये मूल कंसेप्ट ये ज्वर में है। दोषपाक की जैसा ये बताया है, दोष प्रकृति वैकृत्यम, दोषों का पाचन होता है। दोष प्रकृति वैकृत्यम लघुता ज्वर देहयो इंद्रियाणाम च वैमल्यम दोषाणाम पाक लक्षणम। मतलब इंद्रियों में विमलता आती है, लघुता आती है, ज्वर कम होने लगता है, तो उसमें दोष का पाचन हो रहा है, उसको उपचय के तरफ है, ये हम देख सकते हैं। दूसरा ही कंसेप्ट आता है धातु पाक का। ये यहाँ पे धातुओं का पचन होने लगता है, वो संप्राप्ति गंभीर होने लगती है। धातु पाक हो रहा है, ये हम कैसे देखेंगे? तो निद्रा नाशो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरव रुचि अरति बलहानिश्च धातु नाम पाक लक्षणम। ये दोनों ज्वर में ही आए हैं। निद्रानाश, हृदय स्तंभो, विष्टंभो, गौरव रुचि। कोई भी व्याधि में, विशेषतः यकृत विकार में, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यकृत विकार में बहुत ये एक क्या, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में प्राणायतन है, तो उसमें धातु पाक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आप शायद मतलब संधि विकार या और कोई त्वचा इसमें या ग्रहणी, इसमें बहुत कम ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे धातु पाकावस्था, ये बहुत उसका टाइम पीरियड, ये बहुत कम टाइम पीरियड रह सकता है। सपोज अल्कोहलिक लिवर डिसीज रहेगा, तो वो धातु पाकावस्था में खरत्व, धातु, ये सब स्टेजेस यकृत में खरत्व आ जाता है और कुंभकामला की तरफ जाता है, उसमें अरिष्ट लक्षण दिखते। ये सब स्टेजेस पार करने को 3 महीने भी लग सकते हैं या 6 महीने के अंदर भी टाइम लग सकता है। वही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज रहेगा, NAFLD रहेगा, तो 5 साल भी ले सकता है। तो ये व्याधि के और उसमें दोष और दुष्य जो उसमें संप्राप्ति होती रहती है, उस पे सब निर्भर रहता है। निदान, निदान में हम क्या देखेंगे? तो ये पहले चक्रपाणी ने ये कहा है कि निदान में हम पहले व्याधि जनक और व्याधि बोधक। तो व्याधि जनक किस हेतु, इसमें हम विशेष हेतु देखेंगे, किस हेतु की वजह से व्याधि उत्पन्न हुआ है। और व्याधि बोधक जो निदान रहेगा, उसमें निदान पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति निदान पंचक इसमें आएगा। और व्याधि जनक में हेतु रहेंगे, जैसे पहले कहा वो हेतु, बाह्य हेतु और आभ्यंतर हेतुओं के बहुत प्रकार रहते हैं। लेकिन बाह्य हेतु ये आहार विहार, काल, आघात, कृमि, विष, ये सब रीजन ये यकृत विकार में होते हैं। आभ्यंतर हेतु दोष दुष्य सम्मूर्छना जैसे हो रही है, वो आभ्यंतर हेतु में आते हैं। अभी हम देखेंगे आहार विहार, मानसिक, ऋतु, विष, दूषित जल, इसमें कैसे कैसे यकृत विकार हो सकते हैं। तो ये तिसराचार्य का एक सूत्र है, मधुकोष्टिका में आप देखिए, तो मैं उसका सिर्फ सूत्र यहाँ पे लिखा नहीं है, उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बता रहा हूँ। आहार में तिल तेल सरसप, यही आप कौन से भी पांडु कामला उसमें अध्याय देखिए, कौन से भी इसमें ग्रंथों में
चरक रहेगा, सुश्रुत रहेगा, भाव प्रकाश रहेगा, ये सब में ये आपको देखने मिलेगा। तिर, तेल, सर्षप, अतसी, दधि, तक्र, कुर्चिका, मस्तु, मत्स्य, अजा, अविक, गोधा। विहार में ये सुरा, अम्लिका, आम्रतक, मैथुन, आतप सेवन, ये सब। जैसे मैंने बोला आतप सेवन, अपना पहला केस वैसे ही था, उसको उत्पन्न हो रहा था मानसिक, वंस अगेन सेम केस, क्रोध, शोक, भय, आयास, ऋतु, ये कुछ ऋतु विशिष्ट यकृत विकार रहते हैं। ग्रीष्म, शरद ऋतु, मध्यान्ह, मध्यरात्र, ये पित्त प्रकोप, ये सब पित्तवर्धक पित्त प्रकोप कारण है ये सब। विष, गर्विष, वत्सनाभ, अपक्व, भस्म, उससे भी यकृत विकार उत्पन्न होते हैं। ताम्र रहेगा, या अच्छी तरह से आरोग्यवर्धिनी नहीं बनाई गई तो उससे यकृत विकार होता है, ये मैंने खुद देखा है। और भी कुछ भस्म रहते हैं, जैसे नाग रहेगा, या विशेषतः हेवी मेटल्स, उससे होता है। अच्छी तरह देखो, भस्म ये अच्छी तरह से रहेगा। भस्म में हमेशा डबल साइडेड स्वॉर्ड रहता है, अच्छी तरह से बना रहेगा तो वो मतलब बेनिफिशियल रहेगा, और अच्छी तरह से नहीं रहेगा तो वही व्याधि उत्पन्न है। जिसके लिए बेनिफिशियल, भस्म में हमेशा याद रखना, जिसके लिए बेनिफिशियल है वही अच्छी तरह से नहीं बना रहेगा तो उसके वही चीज वो हार्म करेगा। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं उसमें, ये सिंपल है भस्म के बारे में। कृत्रिम विष, दूषित जल, ये बहुत बार वायरल हेपेटाइटिस में देखने मिलता है, जो वाटर बॉर्न रहते हैं। सीरम में देखने को कम मिलता है। व्यापन्न मुदकम यस्तु पिबति आहार प्रसादितम विश्वयतुम पांडुरोगम च त्वक दोषम अविपाकतम, ये सुश्रुत ने कहा है। आगे रूप, ये रूप क्यों हम लक्षण या उसका ये क्यों देखना चाहिए, तो 4 उसमें महत्व के पॉइंट रहते हैं। व्याधि व्यवच्छेद के लिए उपयुक्त होता है, जैसे नख, नयन, पीतता। सिर्फ नख या नयन पीतता, ये हम व्याधि एक लक्षण लेके आया रुग्ण हमारे पास, तब हम वी आर ऑलवेज टेंड टू गिव आवर मेडिसिन। मतलब हमारे पास हमारा एक फॉर्मूला रेडी रहता ही है, आया तो ये अपने को देना ही है और उसको ये करना है। लेकिन हम देखते नहीं है कि ये सच में क्योंकि हमारा डायग्नोसिस, उसने पेशेंट ने एक कंप्लेंट बोला कि मुझे आंखों में येलो डिस्कलरेशन है, पीलापन है, तो हमारा पेन चालू होता है, ये हमको देना है, आरोग्य पहला लिखा जाता है। लेकिन हम देखते नहीं है कि ये दूसरे कोई और व्याधि की वजह से हो सकता है या नहीं, ये सच में कामला है या नहीं है, या इसके लिए व्याधि विवच्छेदार्थ उसका उपयुक्त होता है। चिकित्सा अर्थ, तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ वा हितम लघु अशनम अपतर्पणम वा, चिकित्सा में उसका रूप का उपयोग होता है। जैसे पूर्व रूप मतलब चरक निदान में कहा है, ज्वर में कहा है, कौन सा भी व्याधि, ज्वरा दो मतलब उसमें पांडु, कामला, रक्तपित्त, सभी व्याधि आ गई। तो पूर्व रूप दर्शन में, पूर्व रूप में या व्यक्तावस्था में अब हमारे पास रुग्ण आया तो उसके लिए हितकर लघु अशन अपतर्पण, ये चिकित्सा का भाग हो गया, तो ये करना चाहिए। तो पूर्व रूप और ज्वरा या व्यक्तावस्था, रूपावस्था, तो उसमें चिकित्सा हमें उसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट रहता है साध्य साध्यत्व। चरक ने एक इंद्रिय स्थान में अच्छा ये सूत्र कहा है, तो ये हम बाकी व्याधियों में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं विशेषतः यकृत विकार में विशेष करके देखता हूँ हर रुग्ण में। अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरं विशन्ति अनेन कल्पेन तस्यापि मरणं ध्रुवम्। जो पूर्व रूप में या उसके रूप अवस्था में जो जो लक्षण बताए गए हैं वो सब के सब उसमें व्यक्त होते रुग्ण में रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि वो अरिष्ट लक्षण है, वो असाध्य है। हम अभी असाध्य है, तो उसको पहली बात, कौन सा भी लिवर डिसीज रहेगा, टॉल क्लेम कभी करना नहीं है।
कौन सा भी रहे, छोटा आपको लगेगा वायरल हेपेटाइटिस से या नॉर्मल या आया है, फिर भी टॉल क्लेम नहीं करना है कि ये ठीक होगा, क्योंकि लीवर का फंक्शन, मैंने लास्ट टाइम फिजियोलॉजी में कुछ पॉइंट्स बताए, तो ये बहुत वास्ट चेंज होते रहे। उसका हाफ लाइफ पीरियड जैसे कुछ जैसे मैंने अल्बुमिन का कहा कि 21 डेज रहेगा, एसजीपीटी का कहा, तो ऐसे अलग अलग ये रहता है, तो वो फास्ट उसका प्रोग्रेशन होते रहता है। तो कौन सा भी लीवर हम उसको एक आश्वासन देके हम हमारी चिकित्सा चालू रखना है, क्योंकि उसमें बहुत बार चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आगे पीछे होते रहता है, वो व्याधि ही वैसा रहता है, तो उसके लिए साध्य साध्यत्व ये होता। हेतु निश्चितीकरण, ये हेतु किस वजह से हुआ है, ये लक्षण हमें दिख रहा है, रूपावस्था दिख रही है, उससे हम हेतु निश्चित कर सकते हैं। जैसे पांडुरोगी तो यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते, मतलब पांडु का ये कामला में आया है, तो पांडुरोगी जब अत्यंत पित्तवर्धक आहार सेवन, आहार विहार ये सब होता है, जैसे अभी कहा मैंने पूरा लिस्ट बताया, तो आगे जाके बहुपित्त कामला होती है। तो वही, तो उससे बहुपित्त कामला आई है, तो उसका प्रेजेंटेशन हमारे सामने हुआ है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तब हम देख सकते हैं कि इसका पित्तवर्धक आहार है, तो इतना हम फिर आगे उसका स्पेसिफिक उसका कौन सा हेतु है ये सब तो देख सकते हैं। तो रूप देखने से हमको 4 पॉइंट हमको समझ में आते हैं। अभी हम आयुर्वेदीय व्याधि व्यवच्छेद करते हैं क्या? हम एलोपैथी के शायद करते हैं या नहीं करते। आयुर्वेदीय अच्छे से व्याधि व्यवच्छेद करते हैं क्या? हाँ, देखिए हमारे गोत्र में या इसमें चरक में हम कामला 2 तरह से मतलब मैं जब सेकंड ईयर में था या इंटर्नशिप तक मुझे कामला 2 ही तरह की पता थी, बहुपित्त कामला और अल्पपित्त कामला, रुद्धपत्त कामला, ये 2 ही प्रकार पता थे मुझे। उसके आगे कुछ मतलब कामला ये व्याधि और भी एक्सपांड हो सकता है या कुछ उसमें, क्योंकि हमारा लिवर डिसीज 2 व्याधि में 2 प्रकार में खत्म होता था, इतना ये था। लेकिन जब मैं इसमें काम करने लगा, हिपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में उनका हमारे पास लेक्चर है, जब मैं सीखने लगा, ओपीडी करने लगा, अलग अलग तरह के लिवर डिसीज देखने लगा, तब मुझे उसका एक स्पेक्ट्रम समझ में आने लगा कि ये नहीं, इसके आगे जाके भी बहुत कुछ। तो हमने तो एक सिर्फ हरिद्र नेत्र या ये सब लक्षण लेके आता है, तो हम व्याधि व्यवच्छेद करना चाहिए। जैसे हरिद्र नेत्र, यहाँ पे देखिए, वो मज्जागत पित्त प्रकोप, ये भी इससे भी रह सकता है। बहुत बार जीर्ण अम्ल पित्त रहेगा तो भी हरिद्र नेत्र रहता है, नॉट नेसेसरी उसको कामला ही रहेगी। तो ये हमने उसको इवेल्युएट करना चाहिए। उदक व स्रोतस पैतिक उदर में रहता है, मतलब ये यहाँ पे स्रोतस बताया है, और कौन से अवस्था में रहता है, ये अवस्था हमने देखनी चाहिए। पित्त ज्वर में रहता है, जब वायु क्षीण हुआ रहेगा, पित्त समावस्था में रहेगा और कफ की वृद्धि हुई रहेगी, तब हमें हरिद्र नेत्र देखने मिलता है। कामला में तो रहता है, ये रक्त पित्त के पूर्व रूप में रहता है, पित्त विसर्प में रहता है, पैतिक अर्श में भी रहता है, पैतिक अपस्मार में रहता है, पैतिक उन्माद में रहता है। यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट ये है, ये हरिद्र नेत्र वो देखने मिलता है। दूसरा आता है हरित नेत्र। हमारे ग्रंथों में बहुत उसका वैरायटी अच्छे तरह से दिया है, हम उसको देखते नहीं है। तो जैसे हरित नेत्र, स्थावर विषवेग, पैतिक उदर दोनों में है, हरिद्र और हरित दोनों में है। अन्न व स्रोतस में पित्तज गुल्म है, पित्तज ज्वर, पित्तज पांडु, ये नॉट नेसेसरी, ये अभी जाके पित्त, बहुत बार अम्ल पित्त का प्रेजेंटेशन रहता है पित्तज पांडु का, मैंने तो मतलब उसमें एक पित्तज पांडु अम्ल पित्त का प्रेजेंटेशन रहता है, तब भी ऐसा ही दिखता है। हरित नेत्र वगैरह ये सब दिखता है, रक्त कटुकास्यता रहती है उसमें ही। आप पित्त चरक में से पित्तज पांडु के लक्षण देखिए, तो रक्त पित्त के पूर्व रूप में हलीमक में दिखता है, पित्तज विसर्प रहता है। पहले मैंने एक
परसों मैं जब फिजियोलॉजी बता रहा था तब दो तरह के बाइल पिगमेंट बोले, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो ये दोनों क्योंकि मैंने परसों फिर से आप चाहिए तो एक बार देखिए ये खत्म होने के बाद, उसने मल स्वरूप मलरंजक पित्त ये मैंने बोला था। तो बाइल पिगमेंट्स जो है ये मल स्वरूप का रहता है। तो उसमें ये सब हरित और हरिद्र ये दोनों देखने मिलता है। हलिमक पित्तज अर्श पैतिक अपस्मार पैतिक उन्माद ये दोनों को, हलिमक में हरित नेत्र रहता है, कामला में हरिद्र नेत्र रहता है। ये क्लियर। भेक वर्ण मंडूक जैसा उसका वर्ण रहता है, ये पे देख सकते हैं आप। ये बात सिर्फ कामला, हमको भेक वर्ण हतेंद्रिय इतना ही हमको पता है कामला में, लेकिन ये वातपलाशक ज्वर में भी रहता है, रक्त जो अर्श में भी रखता है, रक्त की अति प्रवृत्ति होने की वजह से भेक वर्ण होता है। ये सब लक्षण है ना, ये अपने ग्रंथों में ही है। हरिद्र वर्ण के नख, ये मज्जागत पित्त प्रकोप, अभी यहाँ पे भी बोला मैंने मज्जागत पित्त हरिद्र नेत्र में, वैसा यहाँ पे भी हरिद्र वर्ण के नख उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जिसे कर्सर है। पैतिक उदर, पैतिक गुल्म, पित्तज ज्वर, कामला, रक्त पित्त का पूर्व रूप, यहाँ पे देख सकते हैं। पैतिक अर्श, पैतिक अपस्मार सेम यहाँ पे है। कल से हम ये सब हमारे पेपर पे लिखेंगे कि मज्जागत पित्त प्रकोप है कि हमारा एक स्पेसिफिक हमारा आयुर्वेद के अनुसार निदान होते जाएगा। इसके आगे हारित नख, पैतिक उदर, पैतिक गुल्म, पित्तज ज्वर, पैतिक मदात्य, पांडु, कामला, रक्तपित्त पूर्व यहाँ पे देखने मिलता है। हरित के नख जैसे हरिद्र वर्ण के वैसे ही हरित वर्ण के भी दिखने मिलते हैं। हरिद्र वर्ण मुख, बहुत सिमिलरिटीज है दोनों में। सिर्फ हरिद्र वर्ण मुख है कामला में है, हरित वर्ण मुख है हलिमक में है। ये तो यहाँ पे देखिए ये हरित वर्ण का मुख है। ये ज्यादातर बिलियरी ट्रैक्ट का डिसीज रहेगा तब हरित वर्ण मुख मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन आता है। रेयरली मतलब वो स्टेज में आना चाहिए, मतलब कोलेंजियोकार्सिनोमा या और भी बहुत उसके बिलियरी ट्रैक्ट के सिंपल डायग्नोसिस होते हैं, व्याधि रहते हैं, उसमें भी देखने मिलता है हरिद्र वर्ण मुख। यह हम बहुत बार देखने मिलता है जब बिलिरुबिन मोर देन 15-20 ऐसा रुग्ण आता है, तब यह ऐसा रहता ही है। हरिद्र वर्ण मूत्र, ये पित्तावृत्त अपान में भी रहता है, पैतिक उदर में रहता है, कामला रक्त पित्त पूर्व, हरिद्र मेह में रहता है, पैतिक मूत्र कृष्ण में रहता है, उष्णवात में रहता है, वायु और अभी पीत वर्ण का मूत्र, ये जब पित्त वृद्धि में रहेगा, वायु क्षीण हुआ रहेगा, पित्त समावस्था में रहेगा, समावस्था में पित्त रहे और कफ की वृद्धि हुई रहेगी, तब ये पीत वर्ण का मूत्र देखने मिलता है। वत्सनाभ विष के जो उसके विषाक्त गुण है उसमें भी पीत वर्ण का मूत्र है। पांडु के पूर्व रूप में पैतिक पांडु में पांडु का उपद्रव करके भी है। कामला, असाध्य कामला, हलिमक दोनों में है। पैतिक ये भी पित्तज में है, पैतिक मूत्र कृष्ण, उष्णवात, बस्ती वृद्धि, मूत्र साध, ये सब में दिखने मिलता है। ये देखो कृष्ण वर्ण मूत्र, ये अल्काप्टोन्यूरिया में बहुत कॉमन रहता है। ये ऐसे ब्लैक यूरिन उसको कहा जाता है, मतलब वो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है वो। लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण वर्ण का मूत्र वातज पांडु में है, वातज स्वर भेद में भी है, असाध्य कामला में है, हरिद्र मेह में है।
पैतृक मूत्रकृच्छ्र में रक्तवर्ण का मूत्र हम हिमैचुरिया करके हम उसका निदान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ पे लिखा है? तो पित्तावृत अपान, यहाँ पे मैंने बोला था हरिद्र वर्ण का मूत्र पित्तावृत अपान में, वैसे ही रक्त वर्ण का मूत्र भी पित्तावृत अपान में रक्त वृद्धि यहाँ पे देखने मिलता है। रक्त की मतलब उसमें द्रवांश की, रक्त वृद्धि का मतलब यहाँ है, ऐसा है कि रक्त में द्रवांश की little bit I'll talk in English because I have received one message. I'll talk in both languages. रक्त वृद्धि का मतलब ऐसा है, वॉल्यूम उसका बड़ा मतलब द्रवांश बड़ा रहता है तब वो रक्तवर्ण मूत्र ये प्रवृत्त होता है, जैसे रक्तपित्त में संप्राप्ति होता है। देन इन रक्तवर्ण मूत्र इज ऑल्सो सीन इन क्षतजकास, क्षतक्षीण, सन्निपातज ज्वर, कामला, असाध्य कामला, रक्तपित्त पूर्वरूप, रक्तमेह, अश्मरी, मूत्रसाद, मूत्रसंग, पैत्तिक मूत्रकृच्छ्र, उष्णवात, मूत्रक्षय, रक्तज मूत्रकृच्छ्र। See, both in पैत्तिक मूत्रकृच्छ्र and रक्तज मूत्रकृच्छ्र, रक्तवर्ण मूत्र is seen. Now, in urine examination, in last lecture, I told about bile salts, urobilinogen. If urobilinogen is absent in urine, then it is obstructive jaundice, and if it is present, then hemolytic jaundice. आप जब भी लिवर डिसीज का या कामला का रुग्ण आएगा, तब आप उसका यूरिन सैंपल आपका अच्छा सेटअप रहेगा, तो यूरिन सैंपल अच्छे उसका देखते जाइए, उसका हर इसमें चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। ये दिस इज अ यूरिन पैनल, यूरिन का कलर पैनल। दिस इज येलो कलर्ड यूरिन, दिस इज एम्बर कलर, दिस इज ब्राउन कलर, एंड दिस इज रेड कलर। This is black urine. This is towards yellowish or हरिद्र मूत्र. Now श्वेत वर्ण पुरुष, in कफ वायु वृद्ध and पित्त क्षीणावस्था. It is also seen in कफज उदर, सन्निपात अतिसार, कफज अतिसार. Very common in कफज अतिसार, in not necessary. Here we are talking about श्वेतवर्ण as well as तील पिष्टनिभ मल प्रवृत्ति, पुरुष प्रवृत्ति. In कफज अतिसार not necessary, श्वेतवर्ण पुरुष not necessary always related to your liver disease or something related to hepatobiliary. Many a times I have seen this in lactose intolerance as well as in fructose intolerance. In कफज अतिसार अवस्था, कफज गुल्म, कफज ज्वर, कफज पांडु, शाखाश्रित कामला, कफज विसर्प, सहज अर्श, कफज अर्श, कफानुबंध रक्तार्श, अर्शोपद्रव. It is also seen in now pita varna purusha. Whenever there is a pitta vritti, वायु दोष प्राधान्य, वहाँ पे वायु क्षीण हुआ रहता है, पित्त की समावस्था में रहता है, कफ की वृद्धि हुई रहती है. ऑल्सो पैत्तिक स्वर भेद, पैत्तिक उदर. आप एक नोटिस कर रहे हैं क्या कि उदर के अवस्था में अलग अलग आपको वेरिएशन दिखाई दे रहे? मैं आगे बताऊंगा. पैत्तिक तृष्णा, पैत्तिक अतिसार, पीतवर्ण पुरुष, पित्त. पित्तज ग्रहणी,
पैतृक पांडु में भी है। जैसे अभी मैंने कहा कि अम्ल पित्त का बहुत बार स्वरूप पैतृक पांडु ये रहता है। या अम्ल पित्त में बहुत सारा वेरिएशन आता है। इट इज नॉट जस्ट वन डिसीज। आई से इट इज अम्ल पित्त, मतलब एक सिंड्रोम जैसा है वो। बहुत सारे निदान आते हैं उसमें। तो वैसे ही यहाँ पे रक्त पित्त, रक्त कामला में होता है, हलीमक में होता है। पित्त जो मेह में पित्त वर्ण पुरुष है। कफानुबंध रक्तार्श अर्शोपद्रव नाउ ये बिलियरी ट्रैक्ट एट्रेशियम में या बिलियरी ट्रैक्ट डिसीजेस में ये नॉर्मल स्टूल का ये दिस आर यू कैन सी 7 8 9 दिस आर नॉर्मल स्टूल कलर एंड दिस इज तील पिष्टनी ब जो हम कहते हैं, फिफ्थ, सेकंड, श्वेत, फर्स्ट, ये सब 6 शेड्स जो है, these 6 shades are related to abnormal stool color related to biliary diseases or hepatological diseases. All hepatological, biliary, pancreatic diseases are included in this. Now, whenever a person or patient comes to you in your OPD, how do we evaluate a liver disease? We should fix our fix protocol for as well as we have fixed protocol for our medicines. जैसे मैंने कहा कि आरोग्यवर्धिनी हमारा फिक्स रहता है, वैसा हमारा डायग्नोसिस के लिए फिक्स प्रोटोकॉल रहता नहीं है। तो उसका एक प्रोटोकॉल जैसे है क्लिनिकल हिस्ट्री, liver examination, liver function test, radiology in liver disease, non-invasive markers of fibrosis. Clinical history. Presenting complaint, हम क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे? तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फैमिली हिस्ट्री, सिस्टमेटिक रिव्यू। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट व्हाट, मतलब वो किस कंप्लेंट से हमारे पास आया है, हमारे रुग्णालय में आया है, हमारे ओपीडी में क्यों आया है, वो हम देखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नखनयन पीतता रहेगा, हरिद्र वर्ण रहेगा, या येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन ये रहेगा। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री उसको कोई other related to liver disease as well as other tuberculosis or something, उसका हिस्ट्री है क्या वो हम देखेंगे, जैसे हम बाकी डिसीज में देखते हैं वैसे। ड्रग हिस्ट्री इन लिवर डिसीजेस, ड्रग हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ being an Ayurvedic physician, we need to know both allopathic as well as Ayurvedic. और भी कोई रहेगा कौन सा पैथी या कोई नेचुरोपैथी, ये सब मतलब कोई भी ड्रग हिस्ट्री रहेगा वो हमें देखना चाहिए। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, नखनयन पीतता रहेगा, कब से है उसका हिस्ट्री या उसका पूरा डिटेल इवैल्यूएशन होना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री, मेनी टाइम्स some liver diseases are inherited, some are genetic disposition, system, तो then systematic review, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसका पूरा सिस्टमेटिक रिव्यू उसका होना चाहिए। Now symptoms, jaundice. Whenever there is an acute onset of jaundice, say nausea, anorexia, aversion of food, most likely it is hepatitis. Say it is a hepatitis. We will not go in detail as of now,
it is it is a sign of hepatitis. Now fluctuating jaundice, मतलब आज है 3 दिन बाद कम हो रहा है, ये लिवर फंक्शन में होता है और क्लिनिकली भी होता है. दिस इज कोलेडोकोलिथियासिस, पेरिएम्पिलरी कार्सिनोमा. इट इज अ पॉसिबल केस. persistent or increasing level of jaundice, cholangiocarcinoma, pancreatic head malignancy. सिर्फ cholangiocarcinoma, pancreatic head malignancy, there is a massive weight loss. Obstruction of bile duct is also seen. Now fever, whenever there is fever with chills, with headache and myalgia, most likely it is viral hepatitis. Fever with chills and right upper quadrant pain, choledocholitis, ascending cholangitis. Fever is say in ascending cholangitis, it is a infective condition many a times, and fever, it is a febrile condition. Weight loss, appetite loss with jaundice, malignancy. आप उसका वेट पे ध्यान रखिए. कोई भी ऐसा रुग्ण आया और उसका लिवर डिसीज का वेट लॉस हो रहा है, इक्टेरस है, वेट लॉस हो रहा है, एपेटाइट लॉस है, मतलब मासिव वेट लॉस रहता है 15 to 20 kg इन 1 month या इन से 45 days, इतना भी मासिव वेट लॉस रहता है. एब्डोमिनल पेन, acute upper abdominal no is acute upper abdominal pain. Many times it is a biliary colic. It lasts for 6 hours. biliary colic उसके बाद कम होता है, उसका मेडिसिन से भी अच्छे से कम होता है. chronic upper abdominal pain, liver pathology, chronic hepatitis, liver malignancy. Now arthritis, many a times patient comes with joint pain, and abruptly after 4 weeks he or she starts with icterus. Because what could be the diagnosis? Because you are treating for joint pain, or there is nothing related to liver, no sign, but abruptly icterus starts, और then you do for investigations. फिर उसमें आता है वायरल हेपेटाइटिस रहे, सॉरी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस रहेगा, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस रहेगा, ऐसा कुछ अलग ही डायग्नोसिस आता है. मतलब हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि कैसा क्या क्या उसमें करना चाहिए. वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज भी रहता है, मोस्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस में वैसा होता है. क्रॉन्स डिसीज में रेयरली होता है, रिलेटेड टू लिवर डिसीज. Change in mental state and neurological function, hepatic encephalopathy and pruritus, cholestasis, very common. उसको he or she is having itching all over the body except intrascapular region, because उसको scratch marks रहते हैं वहाँ पे, इतना उसका continuous itching हुआ रहता है, biliary tract में obstruction हुआ रहता है, कोलेस्टेसिस हुआ रहता है. सिर्फ उसको इंट्रास्केपुलर में नहीं होता क्योंकि वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचता. ये मतलब ये कॉमन सेंस की बात होती है. आप वो देखिए, पूरा उसका शर्ट निकालिए और उसका देखिए कि प्रूरिटस उसको कहाँ पे है. नॉट इसका कहने का एक ही रीजन है. It many times we diagnose as whenever we come with a patient of pruritus, we label it as any skin related disease. So pruritus एक cholestasis में भी रहता है. Now drug history, hepatocellular, here is a type of reaction, and so isoniazid, trazodone, diclofenac, these are commonly amiodarone, tamoxifen, it is commonly given, and these are, if taken in say larger quantity or for long run, those are hepatotoxic, and it is called as
drug injury related liver disease, DILI. It is acronym is DILI. मिथोट्रिक्सेट एक्सेस, लास्ट टाइम मैंने बोला था एक्सेस विटामिन ए, फिजियोलॉजी में बोला था कि एक्सेस विटामिन ए ये फाइब्रोसिस करता है, क्योंकि विटामिन ए का स्टोर हाउस ये लिवर रहता है, इट कैन स्टोर अप टू 10 मंथ्स। तो उसका एक्सेस जितना क्योंकि बहुत बार दिया जाता है कि आई रिलेटेड और समथिंग रिलेटेड वो रहेगा, तो विटामिन ए दिया जाता है सप्लीमेंट या ऐसा करके। तो ये एक्सेस विटामिन ए से लिवर फाइब्रोसिस हो सकता है और आगे जाके लिवर सिरोसिस होता ही है। एक बार फाइब्रोसिस हुआ तो उसका सिरोसिस होता ही है। उसका कॉम्पेंसेट होना डिफिकल्ट रहता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंड्रोजन, एमॉक्सिसिलिन, क्लेवलिनेट, ये बहुत कॉमन, मतलब इट इज एक बहुत ही कॉमन करके दिया जाता है, लेकिन ये भी हिपेटोटॉक्सिक ही होता है। कुछ हर्बल ये रहते हैं ड्रग्स, वो भी हिपेटोटॉक्सिक होते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। Now we'll see about systematic review. Every system wise, जैसे न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइन, ये सब पे लिवर का डिसीज का इफेक्ट होता है। उसका मैनिफेस्टेशन न्यूरोलॉजिकल रहेगा, कैसा रहेगा? कोरिया, it is a incoordinated movements of both the legs and hands. It is a like dancing pattern seen in Wilson's disease, altered behavior, peripheral neuropathy, and Wernicke's encephalopathy, Wernicke-Korsakoff syndrome. It is seen in B1 thiamine deficiency. Wernicke's disease and Korsakoff syndrome both are different, but first presentation always is Wernicke's disease. Dementia, alcoholic liver disease. Now cardiomyopathy is related to alcoholic liver disease or hemochromatosis, right-sided heart failure, congestive hepatopathy, respiratory emphysema, alpha-1 antitrypsin deficiency। यहाँ पे लंग एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन रहता है, उसके फर्स्ट उसका अटैक रहता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी का लंग्स, मतलब उसमें आगे जाके सीओपीडी वगैरह सब होता है, और साथ में लिवर, लंग और लिवर, इसमें उसका ये चलता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। इट इज वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड स्टेज, मतलब अडल्ट्स में दिखता है लेकिन वेरी अनकॉमन। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, बिलियरी ट्रैक्ट में स्क्लेरोसिस होने लगता है, स्कारिंग होने लगता है। सीलियाक डिसीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, सीलियाक डिसीज करके रहता है, उसका प्रेजेंटेशन ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी ऐसा रहता है, और आगे जाके वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कैसा भी करके ये डिसीज पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। पहले मैंने बोला था कि आर्थराइटिस रहेगा, सिर्फ जॉइंट पेन रहेगा, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस रहता है। कभी कभी ये अनार्तवता करके भी अब हमारे पास रुग्ण आती है, मतलब अमेनोरिया रहता है। we treat it as an for amenorrhea for 3 months, 4 months, 5 months, and abruptly icterus starts, liver function deranges, and then on diagnosis it comes out to be autoimmune hepatitis. I have seen 2 cases of amenorrhea which comes out to be autoimmune hepatitis. Currently one is going on and one has been treated.
for amenorrhea, chronic pancreatitis, alcoholic liver disease, cystic fibrosis, हीमोक्रोमेटोसिस में रहता है, डायबिटीज में नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस में मतलब मेटाबॉलिक लिवर डिसीज रहता है, आगे जाके उसका प्रेजेंटेशन रहता है, नैश में होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज का नैश में उसका कन्वर्जन होता है. Rheumatological, just now I told you about arthritis, autoimmune hepatitis, acute hepatitis B. It is also common in acute hepatitis B. Hemochromatosis, sarcoidosis, osteopenia, osteoporosis, all chronic liver diseases. Because last time in physiology, I told about it is a storehouse of vitamin D, and vitamin D लेवल ऑफ विटामिन डी का उसका कम होने लगता है, और एनी क्रॉनिक लिवर डिसीज में अचानक से उसको पाँव दुखने लगता है, या उसके सिर्फ हम उसको कैल्शियम ये वो सब देख के होता नहीं है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना होता है. मतलब ये क्रॉनिक लिवर डिसीज में अलग अलग प्रेजेंटेशन आते हैं. डर्मेटोलॉजिकल, रैश और चेंजेस इन स्किन पिगमेंटेशन, पोर्फायरिया क्यूटोनिया टार्डा, bronze diabetes in hemochromatosis. See, hemochromatosis, bronze diabetes is seen. We'll see about presentation in next slide. Rashes, porphyria cutanea tarda. This is about all about systematic review. मतलब इतना सब हमें लिवर डिसीजेस में देखने मिलता है. Now surveillance. Varices, hepatocellular carcinoma, nutritional status, osteopenia, osteoporosis. We should look for variceal bleeding. Never ever ignore this finding. It can only emergency in case of liver diseases is variceal bleed. No other emergency, मतलब जिससे डेथ हो सकता है, ऐसा होता नहीं है कि तुरंत, लेकिन वराइशियल ब्लीड से ऑन टेबल डेथ हो सकता है. क्योंकि मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में बताया, पर मिनट 1800 ml इतना ब्लड लॉस होते रहे पर मिनट, मतलब अराउंड 2 लीटर एवरी मिनट टू मिनट इतना ब्लड लॉस होते जाता है. इतना ब्लड कर सकता है, तो वराइशियल ब्लीड कभी भी ये करना, एक्यूट स्टेज में मतलब उसको बैंडिंग करना ये सब जरूरी होता है, तब भी पेशेंट बच सकता है. या बाद में उसका सब नॉर्मलाइज रहेगा, तब आप उसको आयुर्वेदीय चिकित्सा दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन आता है. देन हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, वेट लॉस एंड एवरी अदर थिंग, अल्फा फिटोप्रोटीन, उसमें उसका भी लेवल देखना चाहिए. न्यूट्रिशनल स्टेटस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जस्ट नाउ आई टोल्ड. Now common presenting complaints. Patient comes with jaundice, decompensated liver disease, anorexia. It could be malignancy and chronic liver disease, abdominal pain, right upper quadrant pain, cholecystitis, mostly related to cholecystitis or choledocholithiasis, fatigue and pruritus, cholestatic liver diseases. I told about pruritus is related to cholestasis. Fever, it is related to viral hepatitis. Liver abscesses, pyogenic liver abscess or infective liver abscess, ascending cholangitis, dark urine and pale stools, extrahepatic biliary obstruction. It is we can do provisional diagnosis on the basis of clinical presentation and LFT as extrahepatic biliary obstruction when we see dark urine and pale stools. Now risk factors for primary liver disease. Who are at risk? Suspected viral hepatitis, suspected alcoholic liver disease. Patient is consuming alcohol every day, or say 4 days per week, then they are susceptible to alcoholic liver disease. It is bound to happen. Suspected non-alcoholic steatohepatitis, toxins, prior pregnancy,
job, who are especially those who are medical health workers, lab technicians or doctors or nursing staff, especially who are coming in contact with hepatitis B patients. In lab technicians, they come with contact with hepatitis B blood, so they are susceptible to primary liver disease. Blood transfusion, again the same thing. हेपेटाइटिस बी हुआ है, उसका को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, तो हो सकता है, रेयर चांसेस रहते हैं लेकिन होता ही नहीं है ऐसा नहीं है वो। टैटूज, बॉडी पियर्सिंग, ट्रैवल, ये it is related, travel is related to hepatitis A, specifically hepatitis A and E. Now risk factors for liver diseases. Family history: hemochromatosis, Wilson's disease, cystic fibrosis. सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूकस चिकन हो जाता है, तो एवरी ऑर्गन, लिवर रहेगा, किडनी रहेगा, लंग्स, अल्वियोलाई या किधर भी वो उसका क्लॉजिंग करता है, उधर जाके उसका स्टिक होता है, तो और सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, उसको फाइब्रोटिक चेंजेस होने लगते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, थैलेसेमिया, फ्रीक्वेंट अल्कोहल यूज, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, obesity. Non-alcoholic fatty liver disease, medications and herbal injury, drug-induced liver injury, as I mentioned earlier. Foreign travel, hepatitis A and B, B unvaccinated, मतलब वो कौन से स्पेसिफिक रीजन में गया है और उसको वैक्सीनेट हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, और उसको कुछ रीजन से हेपेटाइटिस बी से कांटेक्ट आए, तो मतलब सेक्सुअल और ब्लड और रिलेटेड, तो उससे हो सकता है। हेपेटाइटिस ए इज कॉमन फॉर फॉरेन ट्रैवल। अमीबिक हेपेटाइटिस, उसमें डायरिया का हिस्ट्री बहुत बार रहता है, and if it is untreated then goes to amoebic hepatitis. Nowadays it is a very not so common, but can see a few cases, specifically pyogenic amoebic hepatitis. Male homosexuality, hepatitis B in unvaccinated, ulcerative colitis, as I had mentioned earlier. Sclerosis, they tend to develop primary sclerosing cholangitis. Arthritis, systemic inflammatory symptoms, autoimmune hepatitis. आर्थराइटिस रहता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, इट इज वेरी मिडल एज फीमेल्स में होता है ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। एक बात बोलने का रह गया, मिडल एज फीमेल्स में होता है, अराउंड 22 से 45। पैरेंटरल ड्रग यूज, मिडल, हेपेटाइटिस बी इन अनवैक्सीनेटेड एंड हेपेटाइटिस सी। हाइपोटेंशन, hypoxia, acute liver failure, ischemic liver injury, history of jaundice, chronic viral hepatitis, autoimmune hepatitis, cirrhosis, and when age is 45 to 65, there are more chances to develop hepatitis C. in later stage में होता है hepatitis C. हम जब वायरल हेपेटाइटिस देखेंगे तब उसके बारे में डिटेल देखेंगे। Now we'll say about family history. This is all about, we are seeing about how to approach liver disease. Now this is next point is family history: hemochromatosis, Wilson's disease, alpha 1 antitrypsin deficiency, cystic fibrosis, glycogen storage disease. In last lecture I had told about glycogen in carbohydrate mechanism. Glycogen is storehouse of glycogen is the liver, so glycogen is converted into glucose, and then in further it is simplified or degraded to other products. जब ग्लाइकोजन उसका अच्छे से हो नहीं पाता है,
उसका प्रोसेसिंग, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, उसका प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज अराउंड 10 to 12 अलग अलग डिसीजेस आते हैं, मोस्टली रिलेटेड टू किडनी एंड लिवर एंड मसल्स, क्योंकि ये उसका स्टोरेज हाउस रहता है, स्टोर हाउस रहता है, तो उसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज दिखाई देता है। हीमोक्रोमेटोसिस, it is a wrong, it is because of wrong metabolism of iron in liver. Wilson disease, it is because of wrong metabolism of copper. Now hands side, अभी जैसा हमारे पास पेशेंट आया है, रुग्ण आया है, हम देख रहे हैं उसको, तो अभी हमारे पास अभी उसका हिस्ट्री वगैरह सब हो गया है, अभी हमने उसको एग्जामिनेशन टेबल पे लिया है। तब हम क्या देखेंगे, पहले उसके हैंड्स देखेंगे। एस्टेरिक्सिस, it is a flapping tremor of the hand consistent with hepatic encephalopathy and decompensation. जस्ट एक ही है कि वी आर बियॉन्ड 10:30, आपको रुकना रहेगा, लेक्चर रुकना रहेगा तो बोलिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू दिस। Consistent with hepatic encephalopathy and decompensation, fine tremors are seen in alcohol withdrawal. Palmar erythema is seen in chronic liver disease. We'll see one by one this. Thyrotoxicosis, pregnancy, clubbing. Clubbing is seen in chronic liver disease as well as many other non-hepatological diseases related to respiratory or skin. This is seen. Koilonucleus spoon-nailed is seen in iron deficiency anemia, hemochromatosis, Dupuytren's contracture. Where there is a excess, whenever there is a excess alcohol consumption is there, Dupuytren's contracture in chronic liver disease is seen, not in early stages. Leukonychia, hypoalbuminemia, this is about hand sign. इतने सारे पॉइंट्स हमको हैंड्स में देखने हैं लिवर डिसीजेस के पेशेंट में। Now we'll see flapping tremor. There is a rapid flexion and extension movements at metacarpophalangeal joints and wrist joint with lateral movements of the finger. आप मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को ऐसे स्ट्रेट रखिए और उसको पीछे से टैप कीजिए, मतलब जब उसको क्रॉनिक लिवर डिसीज का या हिपैटिक एनकेफेलोपैथी का पेशेंट रहेगा तब उसको एक फ्लैपिंग ट्रेमर आने लगता है। नेक्स्ट टाइम मैं शायद इसका एक वीडियो दिखाऊंगा या ग्रुप पे शेयर करूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में ही दिखाऊंगा, तो उसमें एक ऐसा फ्लैपिंग ट्रेमर रहता है। आप क्रॉनिक लिवर डिसीज का पेशेंट आपके पास रहेगा तो आप ये जरूर ये टेस्ट करिए। These are absent at rest. वैसे now palmar erythema, hands are seen as reddish. This is because of circulating level of estrogen increases both in cirrhosis and pregnancy. So because of estrogen level higher level, it is seen as palmar erythema. पूरे हाथ लाल रहते, सब पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। reddening of the palm at this is seen at thinner and hypothinner eminences, जो abductor group of muscles रहते हैं, abductor pollicis longus, abductor brevis, ऑपोनेंस पॉलिसिस, ये जो 3 मसल्स रहते हैं यहाँ पे वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका अटैचमेंट रहता है, एमिनेंस पे बोनी अटैचमेंट रहता है, वहाँ पे पाल्मर एरिथीमा रहता है। नाउ कोइलोनिकिया, दिस इज अ स्पून शेप nails.
आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एज वेल एज हीमोक्रोमेटिक उसमें देखने को मिलता है। क्रॉनिक लिवर डिसीज में भी रहता है। क्लबिंग, ये दिस इज सीन इन क्रॉनिक लिवर डिसीज एज वेल एज मेनी नॉन हिपेटोलॉजिकल डिसीजेस। Tips of these fingers enlarge and the nails curve around the fingertips. Here you can see इसका एंगल ऑब्ट्यूस होता है। नाउ ल्यूकोनिकिया, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपोअल्बुमिन। कफवातो वृद्ध रहेगा, पित्त क्षीण रहेगा, तब शुक्ल नख ये उसका दोष प्राधान्य रहता है। राजिमत विष कफज उदर में रहता है, कफज पांडु में रहता है। पैतिकर्ष कफज उन्माद और पांडुवर्ण नख, शुक्ल वर्ण और पांडुवर्ण नख दोनों अलग है। असाध्य पांडु में पांडुवर्ण नख है, पांडु अरिष्ट कफज अर्श में है और शुक्ल नख कफवात वृद्ध। ये इसका हम चिकित्सा में उपयोग करना है क्योंकि कफवात वृद्ध रहेगा, पित्त क्षीण रहेगा, तब वैसा कफज उदर में दिखने मिलता है। कफज पांडु, कफज ज्वर। Now diptyrans contraction. There are 3 gradations: grade 1, grade 2 and grade 3. Whenever there is excess alcohol consumption, there is diptyrans contracture is seen in chronic liver disease. In grade 1, it starts with a small lump in the palm of the hand, just often just under the digit of the palmar crease. In grade 2, here you can see palmar crease. It spreads up to the fascia and to the fingers and leading to development of a cord. Here you can see where my cursor is moving, here develops a cord. Patient can't move his finger. Here you can see a cord where cursor is moving. This is in grade 3. Tight cord is developed that fingers are forced to progressively bend. He cannot straighten his finger. So in the bend stage, he cannot straighten his finger. So there is a contracture is formed. So it is called as dupuytren's contracture. अभी हैंड्स का देखा हमने। नाउ विल मूव टुवर्ड्स स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल साइन। पेशेंट अभी भी पेशेंट हमारा एग्जामिनेशन टेबल पे ही है, उसको हम हैंड्स देखे उसके। अभी स्किन और मस्कुलोस्केलेटल साइंस उसके देखेंगे। रैशेस और डॉर्सम ऑफ हैंड, ये सब हमको मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में सब विथ हिस्ट्री टू एग्जामिनेशन कवर करना है। इतना हम उसमें एक्सपर्टाइज होना है हमको। रैशेस और डॉर्सम ऑफ हैंड, हेपेटाइटिस सी वायरस, हीमोक्रोमेटोसिस, ब्रूसिंग और पीटीके, प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, मिडल ट्रैक मार्क, illicit drug use. Proximal muscle wasting is seen in advanced liver disease and bronze skin pigmentation, late stages of hemochromatosis. Now we will see one by one. Bronze skin pigmentation. Bronze pigmentation occurs because iron build up within sweat glands. ये जो 2 दिख रहे हैं वो ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन है और ये 2 है आउटर हैंड्स, ये नॉर्मल है। ये ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन है। दिस इज सीन इन हीमोक्रोमेटोसिस। दिस इज सीन इन conjunctiva as well as lid of the eye. Those are bronze skin colored. Hello. Porphyria cutanea tarda. Here you can see brown colored porphyrin pigmentation
is seen in liver tissues as well as in the hands in a patient of uh, chronic liver disease, as well as in hemochromatosis. Skin hepatic, it is mainly present in skin. PTK, pinpoint, these are pinpoint size soft tissue hemorrhages. Whenever PTK above the nipple line with a history of cough or vomiting, it is a indicative of increased venous pressure. Bleeding causes the PTK to appear red, brown or purple colored. These are usually flat to touch. They don't lose color whenever you press on them. These are flat. Many times it is because of deranged thrombopoietic function. Now temporal and proximal muscle wasting. You can see temporal muscle wasting as well as proximal muscle wasting. It is indicative of long-standing liver disease. So मांसोशोष हुआ रहता है पूरा, उसका एक ध्यान में रखिए, उसका वेट मांसोशोष हुआ रहता है, प्रॉक्सिमल मसल डिस्टल मसल वेस्टिंग नहीं रहता इसमें, प्रॉक्सिमल साइड में ही रहता है, उसके मांसोशोष हुआ रहता है, लेकिन उसका वेट बढ़ते रहता है. इट इज बिकॉज ऑफ असाइटिक फ्लूइड. सो मतलब हमारा एक जनरल टेंडेंसी रहता है कि वेट बढ़ रहा है तो इट इज अ गुड साइन, हेल्दी साइन. सो इट इज नॉट. वेट बढ़ रहा है तो हमको वो ध्यान में रखना है. चेस्ट साइन, गायनेकोमेस्टिया, स्पाइडर नेवी, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर, क्रॉनिक लिवर डिसीज. अभी हमने हैंड्स देखे, पहला हिस्ट्री वगैरह सब देखा, हैंड्स देखे, बाद में स्किन और मस्कुलोस्केलेटल रिप्रेजेंटेशन देखा. अभी हम चेस्ट की तरफ आए हैं. इमेजिन कीजिए आप चेस्ट अभी देख रहे हैं. गायनेकोमेस्टिया, क्रॉनिक लिवर डिसीज, स्पाइडर नेवी, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर्स. Spider Nevi, if more than 5 in female and more than 3 in male, then it is considered as pathological. And cervical lymphadenopathy, it is indicative of hepatocellular carcinoma. कोई भी लिवर डिसीज का पेशेंट आएगा तो आप पहले उसके पैरोटिड एनलार्जमेंट एज वेल एज सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये दोनों देखना है. मतलब बाय रूल वैसा देखना ही है, क्योंकि it could be hepatocellular carcinoma, you never know it, so better to see it. Cervical lymphadenopathy, here gynecomastia, it is seen in chronic liver diseases many a times. Loss of axillary hairs, पांडु में रस मतलब उसके लोम प्रपतन ऐसा एक लक्षण है. बाकी अस्थिक्षय, स्वेदक्षय ये सब पता है, वातिक शोक में है, वैसा क्रॉनिक लिवर डिसीज में देखने मिलता है. एक यहाँ पे एक ये बोलता हूँ कि पांडु, सुश्रुत ने पांडु, कामला, कुंभ कामला, नागरक, अलसका के पांडु के ही पर्याय बताए हैं. मतलब एक एक व्याधि अवस्था करके ही हम देख सकते हैं उसको. स्पाइडर ने भी जैसे पहले बताया, if more than 5 in female and more than 3 in male, it is considered as pathological. It is because of it is a part of telangiectasia only. Because when you press it, जहाँ आप फिर यहाँ पे आप एक बार एनाटॉमी देखिए, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जहाँ जहाँ इंफीरियर वेना कवा का ब्रांचिंग पैटर्न रहता है, वहाँ उसका स्पाइडर नेवी के ब्रांचेस जाते हैं. या फिर से देखिए. नाउ अभी हम चेस्ट देखा उसका, अभी हम पूरा अभी फेस देखेंगे उसका. फेशियल साइंस, पैरोटिड एनलार्जमेंट विद अ मून फेस, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, केशर फ्लेशर रिंग, केफ रिंग इन सीन इन विल्सन्स डिसीज, xanthosema, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस,
conjunctival pallor, anemia and yellowing of the sclera is seen in jaundice. अभी हम फेस की तरफ देख रहे हैं। पहले बोला मैंने कि सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी देखना है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देखने हैं। नाउ अभी हमको पैरोटिड एनलार्जमेंट भी देखना है। ये बाय रूल ये देखना ही है। केशर फ्लेशर रिंग विल्सन डिसीज में कॉमन रहता है, देखेंगे वन बाय वन। पैरोटिड एनलार्जमेंट रहता है, कंजंक्टिवा पैलर रहता है, इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ एनीमिया। ज़ैंथोलेस्मा रहता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में रहता है, बिलियरी सिरोसिस में रहता है। नाउ केशर फ्लेशर रिंग कॉपर डिपोजिशन होते रहता है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से देखना चाहिए इसको आइडियली, लेकिन आप अपने जो नॉर्मल टॉर्च रहता है उससे भी आप देख सकते हैं। ये केशर फ्लेशर रिंग ये पूरा अच्छा जाता है, ये पूरा अच्छी तरह से ट्रीट होता है। नाउ विल सी एब्डोमिनल साइंस। अभी हमारा सब हो गया, तो हिस्ट्री हो गया, हैंड्स हो गया, स्किन हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, फेस हो गया। अभी नाउ विल एग्जामिनिंग abdominal signs. Inspections. What we see in when we examine, when we inspect abdomen, abdominal scars, subcostal midline laparotomy, कौन सा उसका ऑपरेटिव हुआ है, स्कार है, वो देखना है। एब्डोमिनल मास, ऑर्गेनोमेगाली और मास लीजन, डायलेटेड वेन्स और कैपट मेड्यूसा, पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिस, कंफर्म क्लिनिकली बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस। ये सब टेस्ट जो है अभी मैं पूरे सब बताऊंगा नहीं, एक एक करके बताऊंगा। हम हर लेक्चर में एक क्लिनिकल टेस्ट लेंगे, क्योंकि पूरा अदरवाइज वो बर्डन हो जाएगा तो समझने में भी। तो एक टेस्ट हम एवरी लेक्चर में स्टार्टिंग के 5-7 मिनट हम एक टेस्ट देखेंगे। Abdominal signs, percussion and palpation, organomegaly, pancreaticobiliary kidney ascites, ये देखना है। percussion, palpation, auscultation, friction rub is seen in liver cancer, Pitt-Curtis syndrome, Baumgarten liver infarct, friction rub. It is a peritoneal friction rub. It is produced by friction between roughened surface. You need to light press with your examining hand to feel the thrill over the liver, which is related to respiration. In normal cases, friction rub is not seen. Friction rub is not heard. In liver infarct as well as in splenic infarct, this seen liver cancer and Pitt-Curtis syndrome. It is related to pelvic inflammatory disease. Its presentation on liver and adhesions are formed around your Glisson's capsule. Venous hump, portal hypertension, Curvilier Baumgarten syndrome, and arterial systemic brute, liver cancer, acute alcoholic hepatitis, arteriovenous malformation. एब्डोमिनल ब्रूट यहाँ पे देख, ये सब है। ये हम इसका जो क्लिनिकल ये टेस्ट है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में हर एक लेक्चर में एक क्लिनिकल टेस्ट देखेंगे। In case of palpable liver, this feature we need to see size in inches and centimeter below costal margin. It is seen say 2 inches, 5 inches, 10 inches, likewise, or in centimeters. Edge or margin, whether it is regular or irregular, rounded or sharp. Surface, anterior surface must be examined for smoothness, nodularity, irregularity and umbilication. Umbilication means any deep groove is formed on the liver surface.
anterior surface, tenderness, consistency, movement with respiration and pulsation. नेवी के ब्रांचेस जाते हैं, या आप फिर से देखिए। नाउ अभी हम चेस्ट देखा उसका, अभी हम पूरा अभी फेस देखेंगे उसका। फेशियल साइंस, पैरोटिड एनलार्जमेंट विद अ मून फेस, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, केशर फ्लेशर रिंग, केफ रिंग इन सीन इन विल्सन्स डिसीज, रिंग विल्सन डिसीज में रिंग, कॉपर डिपोजिशन होते रहता है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से देखना चाहिए इसको आइडियली, लेकिन आप अपने जो नॉर्मल टॉर्च रहता है उससे भी आप देख सकते हैं। ये केशर फ्लेशर रिंग ये पूरा अच्छा जाता है, ये पूरा अच्छी तरह से ट्रीट होता है। नाउ विल सी एब्डोमिनल साइंस। अभी हमारा सब हो गया, तो हिस्ट्री हो गया, हैंड्स हो गया, स्किन हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, फेस हो गया। अभी नाउ विल एग्जामिनिंग एब्डोमिनल साइंस इंस्पेक्शंस। What we see in when we examine when we inspect abdomen, abdominal scars, subcostal midline laparotomy, कौन सा उसका ऑपरेटिव हुआ है, स्कार है वो देखना है। एब्डोमिनल मास, ऑर्गेनोमेगाली और मास लीजन, डायलेटेड वेन्स और कैपट मेडुसा, पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिस, कंफर्म क्लिनिकली बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड ड्रिल और शिफ्टिंग गन्स। ये सब टेस्ट जो है अभी मैं पूरे सब बताऊंगा नहीं, एक एक करके बताऊंगा। हम हर लेक्चर में एक क्लिनिकल टेस्ट लेंगे, क्योंकि पूरा अदरवाइज वो बर्डन हो जाएगा तो समझने में भी। तो एक टेस्ट हम एवरी लेक्चर में स्टार्टिंग के 5-7 मिनट हम एक टेस्ट देखेंगे। एब्डोमिनल साइंस, परकशन एंड पाल्पेशन, ऑर्गेनोमेगाली, पैंक्रियाटिकोबिलियरी किडनी असाइटिस, ये देखना है। परकशन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, फ्रिक्शन द्रव is seen in liver cancer, Pitt-Curtis syndrome, Baumgarten liver infarct, friction drug. It is a peritoneal friction drug. It is produced by friction between roughened surface. You need to light press with your examining hand to feel the thrill over the liver, which is related to respiration. In normal cases, friction rub is not seen. Friction rub is not heard. In liver infarct as well as in splenic infarct, this seen liver cancer and Pitt-Curtis syndrome. It is a related to pelvic inflammatory disease. Its presentation on liver and adhesions are formed around your Glissen's capsule. Venous hum, portal hypertension, Curvillier-Baumgarten syndrome, and arterial systemic brute, liver cancer, acute alcoholic hepatitis, arteriovenous malformation. ना एब्डोमिनल ब्रूट यहाँ पे देख, ये सब है। ये हम इसका जो क्लिनिकल ये टेस्ट है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में हर एक लेक्चर में एक क्लिनिकल टेस्ट देखेंगे। इन केस ऑफ पाल्पेबल लिवर, दिस फीचर वी नीड टू सी साइज in inches and centimeter below coastal margin. It is seen say 2 inches, 5 inches, 10 inches, likewise, or in centimeters. Edge or margin, whether it is regular or irregular, rounded or sharp. Surface, anterior surface must be examined for smoothness, nodularity, irregularity and umbilication. Umbilication means any deep groove is formed on the liver surface. Anterior surface, tenderness, consistency, movement with respiration and pulsation. These 7 points are to be seen in organomegaly or palpable liver. Now these are surface marking.
For gallbladder, uh, it intersects the rectus abdominal muscle at the 9th costal cartilage. Now liver, you have seen this spleen. It occupies 9 to 11 ribs on the left side. Upper pole is 2 to 3 centimeter lateral to midline, and anterior border comes to mid axillary line. Now we will see causes of hepatomegaly. Infective if infective, congestive, infiltrative and neoplastic, viral hepatitis, amoebiasis, typhoid, malaria, kala azar, echinococcus infection and tuberculosis, everywhere hepatomegaly is seen. Congestive cardiac failure, constrictive pericarditis, Budd-Chiari syndrome, right portal vein thrombosis is seen there. Budd-Chiari syndrome, in very here remember, in Budd-Chiari syndrome, very difficult to treat this case. I have treated one case of this, but उसमें कुछ पोर्टल वेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, थ्रोम्बोसिस हुआ रहता है, तो डिफ़िकल्टी बहुत सारी आती है, क्योंकि उसमें मतलब व्याधि अवस्था उसकी बदलती रहती है. कभी भी पेशेंट हिपैटिक एन्केफेलोपैथी में जा सकता है, लेकिन बहुत उसमें कुछ ऐसे ड्रग देने पड़ते हैं, मैं आगे बताऊंगा उसका. इन्फिल्ट्रेटिव फैटी इन्फिल्ट्रेशन, हॉटकिंस डिसीज, अमाइलोइडोसिस, ल्यूकेमिया, गॉचस डिसीज, neoplastic, hepatocellular cholangiocellular carcinoma and metastasis. Now we'll see one by one. Tender hepatomegaly. Now we are seeing by cause wise: infective, congestive, infiltrative and neoplastic. Now tender hepatomegaly, cirrhosis with enlarged liver and pulsatile liver. Pulsatile liver, tricuspid regurgitation is seen. Yesterday only this case has come to me of pulsatile liver, tricuspid regurgitation. उसमें CCF का केस है, और उसमें पल्सेटल अभी उसमें LFT डिरेंज हुआ है, तो वैसा केस बहुत बार आता है. लेकिन लीवर पल्सेटल मतलब उसमें आपको पल्सेशन देखने मिलते हैं. टेंडर हिपैटोमेगाली, वायरल हेपेटाइटिस, अमीबिक लिवर एब्सिस, पायोजेनिक लिवर एब्सिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर and hepatocellular carcinoma. In cirrhosis with an enlarged liver, alcoholic hepatitis, hepatocellular carcinoma, Budd-Chiari syndrome, hemochromatosis, secondary biliary cirrhosis, autoimmune hepatitis, Wilson's disease and glycogen storage disease. Here enlarged liver with cirrhosis is seen. Now soft hepatomegaly, firm hepatomegaly and hard hepatomegaly. It is related to your practice. हाउ यू फील इट, मतलब आपको प्रैक्टिस रहेगा फील करने का. फील करने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सब कुछ सेम ही लगेगा. लेकिन एक बार वो मिनिमम 500-1000 पेशेंट्स आप रेगुलर आप देखते रहो, मतलब कोई प्रतिशय का भी रुग्ण रहेगा तो भी आप उसका एब्डोमेन चेक मतलब उसका एग्जामिन करते जाओ, आपको एक आदत लग जाएगी. acute viral hepatitis, fatty liver, congestive cardiac failure, acute Budd-Chiari syndrome and malaria, soft hepatomegaly. In firm hepatomegaly, it is hard, so not hard, but it is a firm thing. Chronic hepatitis, cirrhosis of liver, infiltrative disorders. Hard hepatomegaly is seen in malignancy. Now massive hepatosplenomegaly, splenomegaly is seen in myeloproliferative disorders, chronic myeloid leukemia, lymphoma, polycystic liver disease, glycogen storage disease. अभी मासिव माइल्ड हिपैटोस्प्लेनोमेगाली भी ये कैसे देखने का वो देखेंगे. उसके मतलब इंचेस और सेंटीमीटर्स वैसे ही देखना होता है. वो थैलेसेमिया मेजर, mild hepatosplenomegaly, malaria, infective endocarditis, viral hepatitis, infective mononucleosis.
यह कंप्लीट होने के बाद हम रुकेंगे यहाँ पे आज। अर्ली सिरोसिस विथ पोर्टल हाइपरटेंशन एंड ट्यूबरकुलोसिस। Now, hepatosplenomegaly with ascites, cirrhosis with portal hypertension, lymphoma, constrictive pericarditis, Budd-Chiari syndrome. Now, left lobe enlargement. It is very uncommon condition. Left lobe abscess, left lobe hepatocellular carcinoma, Budd-Chiari syndrome, cholangiocarcinoma with right portal vein, cirrhosis of liver. Rapid enlargement of liver is seen in malignancy of liver and amoebic abscess. And rapid decrease in liver size is seen in whenever there is a improvement in CCF, pulsatile liver gets normal, mobilization of fat from liver, massive hepatic necrosis, and hepatomegaly with generalized lymphadenopathy, miliary tuberculosis, leukemia, lymphoma, infectious mononucleosis. So generalized lymphadenopathy with hepatomegaly, this combination is seen in miliary tuberculosis, very common condition in our country. Lymphoma, atrophy of liver is seen in severe acute liver damage, fulminant viral hepatitis. fulminant viral hepatitis में पेशेंट एक्यूट स्टेज में रहता है, उसमें उसका एक बोलता हूँ कि एट्रोफी ऑफ लिवर बहुत कम लिवर बचा रखता है। जब हमारे पास रुग्ण आता है तब हम उसका लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा से 1000 के रेंज में रहेगा एसजीपीटी 1000, 1500, 1200 वगैरह ऐसा रहेगा। लेकिन अचानक से 4 दिन 5 दिन बाद उसका वैल्यू आने लगता है 100, 75, 80। हमको लगने लगता है अरे वाह हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो गया, पेशेंट अच्छा हो रहा है अभी। लेकिन नहीं, यही एक पॉइंट रहता है, उसका लिवर ही कम बचा रहता है, हिपेटोसेल्युलर पूरा एट्रोफी हुआ रहता है और उसमें कुछ हिपेटोसाइट्स ही रहते नहीं है। तो जितना वो प्रोड्यूस कर पाते हैं वो 75-80 यही रेंज में रहता है और वो फुलमिनेंट वायरल हेपेटाइटिस के स्टेज में गया रहता है। इट इज फेटल स्टेज। सो ये बहुत बार देखना चाहिए कि अब जब हम एलएफटी देखेंगे तब हम देखेंगे कि कैसा क्या देखना है। तो हमेशा नॉट नेसेसरी 75-80 आया है या 50 आया है मतलब वो पेशेंट नॉर्मल हो गया, नेवर। मतलब उसका एट्रोफी, लिवर का एट्रोफी नहीं हुआ है, ये पहले आप देख लीजिए। नहीं तो उसका लिवर ही कम बचा रहेगा और आप देखेंगे तो लेकिन एचजीपीटी, एचजीओटी, बिलिरुबिन ये सब आपको नॉर्मल लगेगा, ऐसा नहीं होता। नाउ डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, माइल्ड 1 to 2 फिंगर्स, माइल्ड कैसा रहेगा तो 1 to 2 फिंगर्स बिलो बिलो कोस्टल मार्जिन, 2 to 5 फिंगर्स रहेगा तो मॉडरेट और 5 फिंगर्स रहेगा तो बिलो कोस्टल मार्जिन तो मासिव। Mild splenomegaly, if more than 5 cm enlargement, infectious hemolytic anemia, lymphoma, splenic vein thrombosis, connective tissue disorder, tumors, tumors or cysts from the spleen, cirrhosis of liver with portal hypertension. Moderate splenomegaly, malaria, काला आजार, myeloproliferative disorder, lymphoma, leukemia, extra hepatic portal hypertension. And massive splenomegaly, chronic malaria, ऐसा केस रहेगा। chronic myeloid leukemia, more than 10 cm enlargement हुआ रहता है, myelofibrosis एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन, उसमें भी स्प्लेनोमेगाली ये रहता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हम देखेंगे तब ये पूरा डिटेल देखेंगे। इसमें भी वैसा ही सॉफ्ट स्प्लेनोमेगाली, फर्म एंड हार्ड। सॉफ्ट किसमें रहेगा तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, सेप्टिसेमिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, टाइफाइड फीवर। फर्म स्प्लेनोमेगाली, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसीज, लिम्फोमा, सिरोसिस ऑफ लिवर। एंड हार्ड इज इन ट्रॉपिकल स्प्लेनोमेगाली सिंड्रोम, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। हमारे यहाँ प्लीहोदर में चरक ने कहा है, प्लीहा कठिनो अष्टिनवादो वर्तमान कच्छप संस्थान उपलब्धते।
कठिन अष्टीलावत, एक अष्टीला जैसा, एक गुठली जैसा, या कच्छप संस्थान, जो ये रहता है कच्छप कासव, टॉर्टोइज, उसके पीठ जैसा जो रहता है, तो उसको वैसा प्लीहा रहता है। ये हमारे यहाँ संदर्भ आया है। ये तो एक कंप्लीट करते हैं और आज हम रुकते हैं। नेक्स्ट इसका ही पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उदक व स्रोतस में मतलब कठिन, स्थिर, स्त्यान, श्लक्ष्ण, स्निग्ध, स्तिमित, क्लेद, ये पूरा हम जैसा देखेंगे। ये स्पर्शगम्य है। अब उदर परीक्षण करते हैं तो कठिन कहीं कहाँ रहेगा, तो कफज उदर में, कफज गुल्म में, सन्निपात गुल्म में, आमवात में, और कफज प्लीहोदर में कठिन रहेगा। श्लक्ष्ण कहाँ रहेगा, तो कफज उदर में, स्निग्ध कफज उदर, उदकोदक उदर, स्तिमित रहेगा। स्तिमित इसका मतलब ऐसा वेट फीलिंग ऐसा रहेगा। कफज ग्रहणी, कफज शूल में, कफज पिच्छ, जब उदर में पिच्छा उत्पन्न हुई रहती है तब स्तिमित, मतलब अपिच्छोत्पन्न, पिच्छोत्पन्न, ऐसे जब उदर के ये आते हैं और आगे जाके उसके जातोदकावस्था, अजातोदकावस्था, मतलब पहले अजातोदकावस्था रहती है, बाद में जातोदकावस्था, तब उसमें स्तिमित ऐसा हमको देखने मिलता है। क्लेद पित्तज ग्रहणी, पित्तज उदर, स्त्यान कफज ग्रहणी में, अस्थिर कफज उदर में, बद्धोदर में, उदकोदर में, असाध्य उदर में। मृदु कहाँ पे मिलेगा, पिच्छोत्पन्न उदर। यहाँ पे भी स्तिमित और मृदु ये पिच्छोत्पन्न उदर में रहेगा, पैतिक ग्रहणी में रहेगा। तो यह पूर्ण द्रुतिवत ये उदकोदर में रहेगा, वैसे ही पक्व गुल्म में रहेगा। उष्म, उष्ण, पैतिक उदर, पित्तज गुल्म, और शीत कफज उदर, अंतमृत गुल्म। आज हम रुकेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट हम सैटरडे को देखेंगे। शायद हमारे 24 से 1-2 लेक्चर आगे हो सकते हैं, कोई चिंता ना करे उसकी, लेकिन हमारा टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। विल स्टॉप हियर।